afternoon students, welcome to today's video lecture. We had finished exercise 10.2 के पहले question number 1 से लेके 10 questions and we have not done the question number 3 of exercise 10.2. So let us continue the chapter vector algebra and let me teach you the remaining theory for the exercise 10.2 जिसमें डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज, वो सब important collinear vectors, direction, numbers and all that important things will come. उसके पहले एक बार लिख लेते हैं equal vectors के लिए. Simple definition: equal vectors. Two vectors are equal. Two vectors are equal if their respective components. Two vectors are equal if their respective components are equal. ठीक है? Let A bar is equal to A1. Let A bar is equal to A1, A2, A3. दूसरा वेक्टर आप रखो B bar, B1, B2, B3. Suppose now अगर दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं so A bar is equal to B bar. Suppose it is A1. Okay, A bar and B bar are equal vectors. तो हम क्या लिख सकते हैं? A1, A2, A3 will be equal to B1, B2, B3. So can I say the respective components are equal? If two vectors are equal, then the respective components are equal. मतलब A1 is equal to B1 and A2 is equal to B2 and A3 is equal to B3. The same thing is true reverse में. और मैंने एक 3D में आपको बता दिया तो उसका मतलब ये 2D में भी ट्रू है. 2D के लिए A बार क्या हो गया? A1 A2 B1 क्या हो गया? B1 B2. A bar is equal to B bar, so A1 A2 is equal to B1 B2, and then what you will write? A1 is equal to B1 and A2 is equal to B2. Now that part is done. Okay. Now give the heading. Give the heading direction cosines. Direction cosines. Direction cosines of vector. Direction cosines of a vector. Direction cosines of a vector. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से अच्छे तरीके से आप लोग इसको याद रखो. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर. अब सपोज लेट O with the origin, let O 0 0 0, let O 0 0, let O 0 0 और P X Y Z. ओरिजिन क्या होता है 3D में? O 0 0. एनी पॉइंट 3D क्या होता है? P X Y Z. Let O 0 0, P X Y Z, P. 2 points B given points in 3D और R3. तो वेक्टर OP क्या होगा? इधर इनिशियल पॉइंट O है, टर्मिनल पॉइंट P है. सो पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O. P का मतलब पोजीशन वेक्टर. देयरफॉर आपको पता है वेक्टर OP क्या आएगा? X Y Z माइनस 0 0 0. तो वेक्टर OP क्या होगा? डायरेक्टली X Y Z. लेट इस वेक्टर OP को रखो आधा. मैं टेक्स्ट बुक की थियरी दे रहा हूं. if ये वेक्टर OP is equal to आधा क्या हो जाएगा? X Y Z where O क्या था? ओरिजिन और P क्या था? एनी पॉइंट इन 3D. ओके, अब आप मॉड ऑफ OP निकालो. मॉड ऑफ वेक्टर OP कैन आई से इट विल बी इक्वल टू mod of R. mod of OP. OP कितना है? OP is equal to R is equal to X Y Z. Now here therefore magnitude of OP will be equal to magnitude of R will be equal to square root of x का square plus y का square plus z का square. So ultimately OP is equal to therefore magnitude of OP which will be equal to magnitude of R will be equal to square root of x square plus y square plus z square. ये आपको पता चल जाएगा.
ओके जस्ट 1 मिनट, ये मैं लिखूं उसके पहले व्हाट आई विल राइट देयर हियर ओपी क्या था, ओपी क्या है, मैंने ओपी को करा आर बार, सो ओपी इज आर बार, देयर वेयर ओ इज ओरिजिन और पी क्या था एक्स वाई जेड। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी का मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर एक्स वाई जेड है, तो कैसे निकालोगे आप, पहला कंपोनेंट x का स्क्वायर प्लस दूसरा कंपोनेंट y का स्क्वायर प्लस तीसरा कंपोनेंट z का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी क्या है, मॉड्यूलस ऑफ r, बिकॉज़ ओपी इज r bar, so can I say that magnitude of r bar is square root of x square plus y square plus z square, because OP क्या है r bar, और आपको पता है मैंने आपको सिखाया था पहले दो क्लास में कि मैग्नीट्यूड ऑफ a बार छोटा नहीं होता है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ r बार क्या होगा, r is square root of x square plus y square plus z square for vector OP is equal to r bar is equal to square root of x square plus y square plus z square, simple, because here क्या याद रखने का, मॉड्यूलस ऑफ OP is magnitude of r which is equal to या तो O इनिशियल पॉइंट क्या था, ओरिजिन O00, P टर्मिनल पॉइंट क्या था XY Z, तो सीधा सिंपल हियर मैंने क्या बताया, हियर O क्या है 0 0 0, P क्या है XYZ, तो therefore वेक्टर OP कितना आएगा सीधा XYZ, let OP is equal to R bar, therefore R bar क्या हो जाएगा, therefore OP is equal to क्या हमको मिलेगा, OP will be R bar which will be equal to XYZ, and therefore modulus of OP will be equal to magnitude of R bar, which is R, will be equal to square root of x square plus y square plus z square, square root of x square plus y square plus z square। अब एक चीज जो यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है वो है xi cap plus yj cap plus zj cap, that I forgot to write, okay, scalar components and all that stuff, and here okay, here OP क्या है, R bar वो क्या है, मैग्नीट्यूड के बारे में लिख चुके हैं x y z, तो therefore OP vector can be written as R bar can be thought of as x into I cap plus y j cap plus z cap, okay, very clear now, very clear। suppose vector OP makes alpha beta, makes angles alpha beta gamma with positive x axis, positive y axis, positive z axis respectively, positive y axis, positive z axis respectively, okay, vector OP makes angle alpha beta gamma। आपको याद रखना है what is the angle vector OP making with positive x axis, it is making angle alpha with positive x axis, it is making angle beta with positive y axis, and it is making angle gamma with positive z axis। तो आपको याद रखना है suppose vector OP makes angle alpha beta gamma with positive x axis, positive y axis, positive z axis, तो roughly इसका डायग्राम ऐसा सोच सकते हैं, okay, right, now this is origin, and suppose any point, this is any point P x y z, और origin को क्या है 0 0 0 को बाद में लिखेंगे, and suppose positive x axis को x, positive y axis को 1 और positive z axis को z, तो ये नीचे x dash आएगा left में, sorry this will be y dash dotted, this will be dotted x dash, and this if I take carry forward like this, you
it will be z dash. Now origin क्या है? O 0 0 0. OP vector is r bar, and this vector OP, suppose vector OP is equal to r bar makes कितना? Alpha with positive x axis. It is making alpha with positive x axis. ये एंगल है alpha with positive x axis. फिर angle between OP and positive y axis is beta, and the angle between OP and positive z axis को कितना बड़ा एंगल आएगा? This will be gamma. This is clear to you? Yes. So alpha is the angle. Alpha is the angle between, therefore alpha is angle between, इसका दूसरा वर्जन I will give you later on, angle between vector OP is equal to r bar. Angle between the vector, so listen, the angle between the vector OP which is r bar, which is x y z and positive x axis. आपको ऐसे याद रखना है, beta is angle between the vector OP. OP क्या था? Is angle between the vector OP which is r bar is x y z and positive y axis, and the last one is gamma. Gamma is angle between the vector OP. OP क्या था? r bar x y z. O is origin, O00 P is x y z, और OP is equal to r bar and positive z axis. ये आपको याद रखना है. तो alpha is the angle between OP and positive x axis. Beta is the angle between the vector. Okay. Alpha is angle between, let me just revise once, angle between the vector, कौन सा था? OP. दूसरी बार नहीं लिखूंगा, खाली एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लूंगा ताकि आप लोग याद रख सको. and positive x axis. So what is alpha? Alpha is the angle between the vector OP which is r bar is equal to x y z and positive x axis. What is beta? Angle between the vector OP is equal to r bar is equal to x y z and positive y axis. What is gamma? Is the angle between the vector OP is equal to r bar x y z and positive z axis. तो ये जो एंगल्स हैं अल्फा बीटा गामा, ये जो वेक्टर्स हैं, ये जो एंगल्स हैं अल्फा बीटा गामा, वो हो जाएंगे डायरेक्शन एंगल्स. तो आपको याद रखना है डायरेक्शन एंगल्स. Therefore direction angles of, I will just write r bar is equal to x y z. Understood है वो OP. Direction angles of vector OP is equal to r bar is x y z, वो है अल्फा बीटा गामा. और यहाँ पे दूसरा डायरेक्शन कोसाइंस. हियर ये हो गया डायरेक्शन एंगल्स. हियर O क्या था? ओरिजिन. P क्या था? x y z. तो therefore OP वेक्टर जो था r bar वो था x y z. अंडरस्टूड? x y plus y j plus z k. So therefore okay, OP is r bar is x I cap plus y j cap plus z k cap. Okay. तो यहाँ पे मैं लिख चुका हूं कि वेक्टर अल्फा डायरेक्शन एंगल्स के बारे में मैं समझा चुका हूं. अब सपोज इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ओपी वो क्या आएगा? मॉड ऑफ आर बार. मॉड ऑफ ओपी इज मॉड ऑफ आर बार, मॉड ऑफ ओपी विल बी इक्वल टू, देयरफॉर मॉडुलस ऑफ ओपी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार इज आर विद स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. इसके डायरेक्शन एंगल्स कौन से हैं? जो उसका मीनिंग था तो मैं आपको समझा चुका हूं. लेट हियर अल्फा बीटा गामा, हियर अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ OP. वो क्या था?
है डायरेक्शन एंगल्स ऑफ विद द डिस्क्राइब मीनिंग, वो आप समझ गए हो, एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड ओपी ऑल दिस स्टफ, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ, ओके, suppose just one statement as to data, suppose OP is equal to R bar is equal to x y z makes angles alpha beta gamma with positive x axis, positive y axis, positive y axis, positive z axis respectively. तो डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं? therefore अल्फा बीटा गामा विल बी डायरेक्शन एंगल्स, जो मैंने अभी आपको सिखाया डायरेक्शन कोसाइंस के थियरी के टॉपिक में, उसका पूरा रिवीजन हो गया। डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वेक्टर OP is equal to R bar which is equal to x y z, कौन से हैं? अल्फा बीटा गामा। ओके, इधर तक भी इतना ही हमने सीखा है आज के लिए। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, अगर डायरेक्शन एंगल अल्फा बीटा गामा है तो आपको सीधा याद रखना है कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, therefore डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर OP is equal to R bar, ये आपको याद रखना है, डायरेक्शन कोसाइंस therefore डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर क्या था? OP R bar is equal to x y z r given by या r सीधा लिखना है cos alpha cos beta cos gamma। ओके, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर OP which is R bar, जो था x y z, वो होंगे cos alpha cos beta cos gamma separated by commas, not in C brackets। तो ये आपको याद रखना है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OP is equal to R bar हो जाएगा x y z, वो हो जाएगा cos alpha cos beta cos gamma। here OPR और मैग्नीट्यूड में सब कुछ आपको बता चुका हूं। here cos alpha will be x upon r, cos beta कैसे मिलेगा? y upon r, और cos gamma होगा z upon r, जहां पे OP is equal to r is equal to x y z है और mod OP is equal to mod r is equal to r is equal to square root of x y z है। और वो क्या काम करेंगे? और डायरेक्शन कोसाइंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हियर सीधा आपको याद रखना है, cos अल्फा कैसे मिलेगा? x upon r, cos बीटा कैसे मिलेगा? y upon r, cos gamma कैसे मिलेगा? z upon r। that is the direction cosines। now let cos alpha is equal to n, cos beta is equal to n, cos gamma is equal to n, ये डेफिनेशन है, तो आपको याद रखना है therefore l is equal to, therefore l क्या हो जाएगा? x by r, m क्या हो जाएगा? y by r, और n क्या हो जाएगा? z upon r। ओके, ये आपको याद रखना है। सो ये हो गया हमारा cos alpha cos beta cos gamma। सो डायरेक्शन कोसाइंस क्या थे? अल्फा बीटा गामा, डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गामा, तो डायरेक्शन कोसाइंस cos alpha cos beta cos gamma। therefore हमारे पास इधर x क्या हो जाएगा? l is equal to xr, सो x क्या आएगा? lr, y क्या आएगा? mr, और z क्या आएगा? mr। कितना समझ गए? सो फॉर वेक्टर OP this forms the theory of the direction cosines। अगर डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा का डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OP is equal to r is equal to x y z will be cos alpha cos beta cos gamma, जहां पे cos alpha is x upon r, cos beta is y upon r, cos gamma is z upon r। let cos alpha is l, cos beta is l, cos gamma is n, तो l is x r, n is y by r, n is z by r। इसमें x क्या मिलेगा? l r, y क्या मिलेगा? m r, z क्या मिलेगा? n r। नाउ इतना करने के बाद व्हाट विल डू? therefore ये जो पॉइंट है, therefore इधर जो पॉइंट है, therefore ये जो पॉइंट है कौन सा वाला? here just one minute, ये जो पॉइंट है
तो क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है दिस वन, ओके नाउ so when we will be describing this, okay, this part we have done. X is LR, Y is MR, and Z is NR. So for here origin क्या था, O0, okay, point क्या था here, point P, X Y Z क्या हो जाएगा, P times LR, फिर MR और NR, और जो वेक्टर OP है, जो है R bar, which is equal to X Y Z, वो क्या हो जाएगा, LR MR NR. तो आपको याद रखना है कि the numbers, this theory was given in the starting also. This theory was also given in the starting of exercise 10.1 के पहले पेज नंबर 426 पे, and same thing is being given that you can say where no, वो स्टार्टिंग में दिया था एक्सरसाइज 10.1 के पहले, इसलिए मैंने वो कवर अप नहीं किया था क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है, इसलिए मैं ये अभी कवर अप कर रहा हूं. सो P जो XYZ था वो P हो जाएगा LR MR NR, और OP वेक्टर इज इक्वल टू R बार इज इक्वल टू XYZ हो जाएगा LR MR NR. तो आपको याद रखना है कि द नंबर्स, ये जो नंबर्स हैं, द नंबर्स LR, LR MR NR are proportional okay, LR MR NR किसको proportional है, are proportional to the direction cosines, are proportional to direction cosines element, direction cosines LMN. तो ये जो नंबर है LR MR NR, उसको हम बोलेंगे डायरेक्शन रेशियोज, उसको हम बोलेंगे डायरेक्शन रेशियोज, that will be called as direction ratio. These numbers, the numbers LR MR NR are called direction ratios for vector OP is equal to R, which is equal to X Y Z. ओके, जहां पे where सीधा अल्फा बीटा गामा क्या थे, डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस क्या थे, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, cos अल्फा cos बीटा cos गामा. सो द नंबर्स LR आपको डायरेक्शन इज इक्वल टू वेक्टर OP इज इक्वल टू R बार इज इक्वल टू X Y Z, where मैं सीधा सब कुछ लिख रहा हूं. where O क्या था, ओरिजिन, P क्या था, X Y Z, फिर magnitude of OP, yeah, here has where, okay, or the direction ratios of the vector OP is equal to R bar is equal to X Y Z. Let LR is equal to MR is equal to ABC. Let LR is equal to A, MR is equal to B और NR is equal to C. तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, तो डायरेक्शन रेशियोज for OP is equal to R bar equal to X Y Z will be ABC. Okay, अब ये थियरी डायरेक्शन कोसाइंस की पूरी मैंने लिखी, पर फिर भी काफी स्टूडेंट्स इसको याद नहीं रख पाए होंगे. इसको मिनिमम हमको आपको 2 या 3 बार अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा, तभी आप इसको याद रख सकते हो. So let me give the heading again, direction cosines of a vector. Direction cosines of a vector. Direction cosines of a vector. तो सबसे पहले मैंने ओरिजिन लिखा था O 0 0 P X Y Z D 2 points in. Okay, let O is O 0 0 और
ऑफ आर से। फिर वेक्टर ओपी निकाला था मैंने, निकालो वेक्टर ओपी निकालो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। मुझे पता है डायरेक्टली आपको आ जाएगा, ओपी आएगा x y z माइनस 0 0 0। तो ओपी क्या होगा, वेक्टर ओपी क्या होगा, वेक्टर ओपी होगा x y z। therefore वेक्टर ओपी होगा x y z। लेट वेक्टर ओपी इक्वल टू r, तो वेक्टर ओपी विल बी इक्वल टू r बार इज इक्वल टू, अब आपको ये सब याद रखना है सीधा। सो therefore वेक्टर ओपी विल बी इक्वल टू r bar which is equal to x y z which is equal to, okay, इसको मैं लिख रहा हूँ xi cap, okay fine op is equal to r bar is equal to x y z। therefore modulus of vector op will be equal to magnitude of vector r bar which is equal to which will be square root of x square plus y square plus z square। अभी तक बेसिक मैंने आपको नोटेशंस सिखा दिए, ये आपको याद रखना है कि O ओरिजिन है, P XYZ है तो OP XYZ आएगा, OP को R बार रखो, OP इज इक्वल टू R बार। नाउ नोट करके ओके OP वेक्टर जो R बार है, जो XYZ दैट कैन बी रिटन एज XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। फिर लेट अल्फा is equal to angle between is equal to angle between vector OP which is equal to r bar is let alpha is equal to angle between, okay, angle between OP is equal to r bar is x y z and positive x axis beta क्या होगा, एंगल बिटवीन मैं सीधा फाइनल आपको बता रहा हूं, जो आपको याद रखना है इज एंगल बिटवीन वेक्टर ओपी विच इज आर बार, वो क्या था एक्स वाई जेड एंड क्या था पॉजिटिव वाई एक्सिस। फिर अल्फा बीटा गामा, तीसरा एंगल था गामा, वो है एंगल बिटवीन कौन सा वेक्टर OP which is equal to r bar is x y z and positive z axis and positive z axis। okay, अब positive z axis, अब इसके बाद अल्फा बीटा गामा को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन एंगल्स। हियर आप ऐसा याद रखो कि अल्फा बीटा गामा दे बिलोंग टू क्लोज्ड ओपन 0 to 2 pi, उसमें अभी मुझे जाना नहीं है। ओके देयर आप याद रखो डायरेक्शन एंगल्स, ये अल्फा बीटा गामा हो जाएंगे, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वेक्टर OP which is r bar which is equal to x y z अल्फा बीटा गामा। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, cos अल्फा cos बीटा cos गामा। डायरेक्शन कोसाइंस या मैं ऐसे लिखता हूं therefore अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल, कैन बी बेटर वे ऑफ राइटिंग। therefore ओके ना एग्जाम में ऐसे ही लिखते हैं तो मैं वैसे ही लिख रहा हूं, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वेक्टर OP क्या होगा, वो है अल्फा बीटा गामा, ये आपको याद रखना है। और फिर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर OP which is r bar which is equal to x y z, क्या है कुछ कैलकुलेट cos अल्फा cos बीटा cos गामा। डायरेक्शन कोसाइंस cos अल्फा cos बीटा cos गामा, लेट cos alpha L, cos beta M, cos gamma N। डायरेक्शन कोसाइंस मैं ठीक है कैसे कैलकुलेट करूंगा वो मैं आपको बताता हूं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ
OP which is R bar X Y Z वो क्या आएगा L M N। अब OP क्या था R bar O origin सो दो चीजें खाली मैं लिख देता हूं, दो चीजें मैं खाली लिख देता हूं हियर, क्योंकि वो याद रहना चाहिए। वेक्टर OP क्या था R bar is equal to x y z modulus of therefore and magnitude of OP which is, क्योंकि वो लेटर्स अगर आप भूल जाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है। डायरेक्शन एंगल्स हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस हो, तो अगर डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गामा है, डायरेक्शन कोसाइंस LMN जो है cos अल्फा cos बीटा cos गामा, cos अल्फा is L, cos बीटा is M and cos गामा is N। तो आपको याद रखना है कि cos अल्फा कैसे मिलेगा, cos अल्फा आपको मिलेगा, cos अल्फा will be x by r, cos theta will be y by r, cos gamma will be n by r। cos अल्फा क्या है L, so L will be x by r, cos बीटा क्या है m, वो हो जाएगा y by r, और cos gamma वो क्या है n, जो हो सॉरी this is minus a cos alpha is x upon r, cos beta is y upon r and cos gamma is z upon r। so cos gamma is n is z upon r। वो आपको पता चल गया। therefore इसमें से जो x कोऑर्डिनेट nr, y कोऑर्डिनेट mr, z nr। अब here point p क्या था, here point p क्या था, point p था xyz, पॉइंट p था xyz। तो अगर आपको पॉइंट ढूंढना, सो हियर वो पॉइंट p xyz क्या हो जाएगा, LR MR NR। बहुत इजी है, ध्यान से। देयरफॉर वेक्टर OP जो है R बार वो क्या है xyz, वो क्या हो जाएगा LR MR NR। अगर ध्यान से देखो तो LR MR और LR उसमें LMN क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। LMN डायरेक्शन कोसाइंस है, cos अल्फा L, cos बीटा M, cos गामा N डायरेक्शन कोसाइंस है। LR MR NR कॉमन फैक्टर क्या है, LR MR NR कॉमन फैक्टर क्या है, LR MR और NR का कॉमन फैक्टर क्या है R। तो आपको क्या याद रखना है, जस्ट 1 मिनट, के द नंबर्स, उसको डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस हो गया। डायरेक्शन नंबर्स के बारे में डायरेक्शन रेशियोज, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन नंबर्स भी बोलते हैं, जो मैं आपको लास्ट टाइम बताना भूल गया। तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइंस का, यहां तक था अभी तक जो मैंने समझाया उसका वेरी शॉर्ट में ब्रीफ में रिवीजन। अब डायरेक्शन रेशियोज रह गया, तो मैंने क्या लिखा था, द नंबर्स LR MR और NR उन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है R। तो R proportional to direction cosines element। yes or no, कॉमन फैक्टर R उड़ा दिया, तो ये जो LR MR और NR है उसको हम बोलेंगे, LR MR और NR को हम बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो, उसको हम बोलेंगे LR MR NR are called direction ratios or direction numbers of कौन सा वेक्टर था OP, जो क्या था R बार, जो है x y z। ठीक है, अभी उसमें डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गामा है, डायरेक्शन कोसाइंस LMN cos अल्फा cos बीटा cos गामा है, वो हम समझ गए। और उनको देखो डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन नंबर्स ऑफ कौन सा वेक्टर था OP which is equal to R bar is equal to x y z। वो क्या थे LR, अरे कौन से थे LR MR और LR MR और NR, LR MR और NR। अब अगर मैं LR और MR को कुछ नाम दे दूं, ठीक है,
that so that part is clear. That part is clear. Now that part is clear. Okay. So that part is clear. Okay. Direction ratios or direction numbers of OP is equal to R bar is equal to X Y Z is equal to LR MR NR here. आपको याद रखने का cos alpha is L. वो कितना था? L is equal to क्या था? Here therefore here L क्या था? Simple. L क्या था? cos alpha कैसे मिलेगा? X upon R. Y क्या था? M क्या था? cos beta वो कैसे मिलेगा? Y upon R. और M क्या था? cos alpha, cos beta, cos gamma वो क्या आएगा? N by simple. That you know. अभी इधर डायरेक्शन रेशियोज को मैं LR MR NR को ABC लिखने की जरूरत नहीं है ना. अब क्या करो L² + N² + N² करो ना. हियर आपको याद रखना है कि OP वेक्टर कितना है? R bar. ओके दैट पार्ट इज क्लियर. एंड mod of OP वो क्या है? mod of R which is square root of x square plus y square plus z square. अब आप क्या करो? That ratios all the points of direction cosines and direction ratios. Okay, बहुत अच्छे तरीके से हो गया. Now no need to worry. एकदम अच्छे तरीके से हो गया. अब आप L² plus N² plus N² करो. Now here L² plus M² plus N² करो. L² plus M² plus N². ये cos square plus cos square gamma. Now find करो cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma. cos alpha क्या है? x by r. तो वो हो जाएगा x square upon r square plus y square upon r square plus z square upon r square. तो वो क्या आएगा? That will be common denominator x square plus y square plus z square upon r square. अब आप ध्यान से देखो magnitude of vector OP is magnitude of R is R is root of x square plus y square plus r square. So can I say this is equal to r square upon r square which is equal to r square upon r square because r क्या है? Square root of x square plus y square plus z square which is equal to क्या आएगा? 1 is equal to 1 which is equal to 1. So what I have to do? Therefore आप लोग अब से याद रखो कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस cos अगर डायरेक्शन एंगल्स किसी भी वेक्टर के अल्फा बीटा गामा है, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गामा है तो क्या आएगा? cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is 1. Now therefore आप क्या लिख सकते हो? L² plus M² plus N² is 1 because L क्या है? Now here L is cos alpha. Now cos alpha क्या था? L. cos beta क्या था? M. और cos gamma क्या था? N. दूसरा नोटेशन ये सब याद रखना है आपको. L² plus M² plus N² is 1. ये आपको याद रखना है. ये आपको आ गया. Now एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप फाइंड करो अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स है तो cos alpha cos beta cos square alpha cos square beta cos square gamma 1 है. Therefore मैं फाइंड कर रहा हूं sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma. अब वही sin square beta 1 minus cos square beta तो ये हो जाएगा 1 minus cos square alpha plus 1 minus cos square beta plus 1 minus cos square gamma. 1 plus 1 क्या होगा? 3 और वो तीनों में वो ऐड हो जाएगा. दिस विल बी 1 plus 1 minus common cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma. तो ये क्या है? This turns out to be 3 minus cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma. जहाँ पे alpha beta gamma डायरेक्शन एंगल्स ऑफ OP is equal to r bar is equal to x y z. तो cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma 1 होता है 1 which is equal to 2. Therefore ये रिजल्ट आपको भी याद रखना है क्या? कि sin square alpha. This is one of the most popular MCQs asked in any exam for 1 mark. कि if alpha beta gamma are direction angles of vector r bar या OP is equal to r bar is equal to x y z then sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma क्या है? ये आपको याद रखना है.
ये आपको याद रखना है, राइट? क्लियर? दैट इज यू कैन से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरीज ऑफ वेक्टर्स, जो कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। और हाँ, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस का अगर खाली हमको रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम सोचना है, सपोज पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव, suppose I want to sum up everything, you will understand. This is positive x axis, positive y axis, let this be positive z axis, पीछे एक्सटेंड करो, डॉटेड आएगा। this is a 2D diagram, so 3D को हम 2D में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, so just मैं ऐसे रिप्रेजेंटेटिव बता रहा हूँ। डॉटेड नेगेटिव y axis, ओके, x y z, ये हो गया y डैश, ये हो गया z डैश। ओरिजिन अभी मैंने लिखा नहीं है, और यहाँ से आएगा ओरिजिन से नेगेटिव x एक्सिस, सो दिस इज नेगेटिव x एक्सिस, सो x डैश यहाँ पे है ओरिजिन O 0 0 0, ओके, दैट इज द ओरिजिन। नाउ ओरिजिन, और यहाँ पे एक पॉइंट है P x y z, हियर वी आर हैविंग अ पॉइंट P x y z and origin is O 0 0 0, okay, that is understood। तो ये वेक्टर OP क्या था? r bar, and this vector OP r bar makes angle of measure कितना? अल्फा with positive axis। OP और x bar के बीच में, पॉजिटिव एक्सिस के बीच में कितना था? अल्फा। वेक्टर OP r bar और पॉजिटिव y एक्सिस के बीच में कितना एंगल था? डायरेक्शन एंगल, वो था बीटा। और दूसरा वेक्टर OP और पॉजिटिव z एक्सिस, दिस वन, दिस फुल एंगल, वो क्या था? गामा। चलो, और फिर O origin here, see O origin, be very clear, don't be lazy, P x y z, तो OP क्या था? r bar क्या था? x y z, okay, xi plus yj plus z के ऊपर लिखता हूं, magnitude of OP is magnitude of r bar, which will be equal to square root of x square plus y square plus z square, alpha beta gamma। समझ गया एंगल बिटवीन क्या है? so here vector OP, here OP is equal to, okay, that is not right, that is understood, direction angles, डायग्राम से ही आपको पता चल रहा है, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ कौन सा वेक्टर? OP, which is equal to डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वेक्टर OP जो है r bar, which is equal to x y z, वो क्या होंगे? अल्फा बीटा गामा। और आपको याद रखना है कि here अल्फा बीटा और गामा belong to close 0 to pi, ये आपको याद रखना है। What will be the measure of angle alpha beta gamma, किसके बीच में आएंगे? close 0 to pi, तो प्लीज आप याद रखना। फिर डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? एलिमेंट, नहीं, डायरेक्शन कोसाइंस क्या थे? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर OP जो था r bar x y z, वो हमने क्या रखे थे? वो थे, अगर डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गामा, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या थे? cos alpha, cos beta, cos gamma separated by comma, please don't write in the bracket something like this, separated by commas, cos alpha, cos beta, cos gamma। here cos alpha को हमने क्या रखा था? L, cos beta को क्या रखा था? let, cos alpha को क्या रखा था? N, cos beta को क्या रखा था? M, और cos gamma को क्या रखा था? N। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? सी स्टार्टिंग की सारी थ्योरी लिख चुकी है, सो वो डायग्राम से ही आपको याद रखना है। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर OP जो था r x y z, वो क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस, वो हो जाएंगे L M N। अब आपको पता है कि ये वेक्टर OP क्या है? r y इक्वल टू x y z, तो देयरफॉर आपको याद रखना है कि cos अल्फा वो क्या होता है? cos अल्फा क्या होता है? x by r। cos बीटा क्या होता है? y
z by r. Please don't do any mistake. Cos alpha will be x by r and cos beta will be y by r and cos gamma will be z by r. Please आपको याद रखना है, don't commit a mistake. If you commit a mistake, you are wrong. अब थियरी के बाद में आपको इसके बेस पे एक सम बताऊंगा डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन द मोस्ट परफेक्ट वे. तो cos अल्फा मिल गया, cos बीटा मिल गया, cos गामा मिल गया. सो L be x by r, y be m which is y by r और n भी क्या हो जाएगा z by r. तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट ऑफ p, y कोऑर्डिनेट वो आपको मिल जाएगा x lr y mr z nr. इट्स बेटर वे, बेस्ट वे कि ये थियरी आप मैं अगर 3 बार लिख रहा हूं या 2 बार आप 3 या 4 बार लिखो तो ही लर्न होगी. सो देयरफॉर पॉइंट p x y z वो क्या हो जाएगा p lr mr nr. देयरफॉर ये वेक्टर OP जो है अल्फा वो क्या था x y z वो क्या हो गया lr mr nr. lr mr nr और ये lr mr nr क्या है, प्रोपोर्शनल टू एलिमेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे डायरेक्शन रेशियोज. तो आपको याद रखना है डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन नंबर्स. देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन नंबर्स ऑफ कौन सा वेक्टर OP जो था अल्फा which is equal to x y z, अगर उसके डायरेक्ट वो थे lr mr nr. डायरेक्शन रेशियोज को बोलते हैं डायरेक्शन नंबर्स. फिर हमने l2 + n2 + n2 निकाला तो वो क्या था 1. l2 + n2 + n2 क्या था 1. l2 हियर आप लोगों को क्या रखना है, हियर पहला रिजल्ट l2 + x2 हियर cos square अल्फा. अगर अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन कोसाइंस है, अगर अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स है, तो डायरेक्शन कोसाइंस cos अल्फा cos बीटा cos गामा. तो आपको याद रखना है cos square अल्फा plus cos square बीटा plus cos square गामा इज 1. देयरफॉर क्या आएगा l2 + m2 + n2 इज 1. और नोट इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने जो बोला था याद रखिए, तो sin square अल्फा plus sin square बीटा plus sin square गामा इज 1. यस. अभी भी एक और टॉपिक बाकी है which is डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर. कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया. दिस डायग्राम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, समझ जाइएगा. जस्ट 1 मिनट. ओके, नाउ आई विल नॉट राइट अल्फा इज द एंगल बिटवीन पॉजिटिव x एक्सिस एंड z एक्सिस, वो आप समझ गए हो. नाउ अब डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर क्या होता है फॉर O and P x y z. OP gamma x y z. मैग्नीट्यूड ऑफ OP लिखो. फिर डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन एंगल अल्फा बीटा गामा है, तो cos अल्फा क्या होगा, cos बीटा cos गामा क्या होगा, वो हम अभी पूरा डिटेल में करेंगे नहीं. सो OP is R is x y z. Z and therefore OP is R and magnitude of vector OP is magnitude of R is R in the square root of x square plus y square plus z square. कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि अरे सर एग्जाम क्यों वापस लिख रहे हैं, अरे ये याद रखना है, एक बार याद हो जाएगा तो आपने लिखा. सम्स बहुत इजी है, सम्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे. थियरी के लिए सपोज वी टेक 2 hours, exercise will be finished in 1 hour 45 minutes, only 45 minutes. थियरी के लिए 2 या 3 घंटे चाहिए, तो एक्सरसाइज के लिए only half an hour 45 minutes चाहिए. थियरी अच्छी तरीके से लर्न होनी चाहिए. लेट अल्फा बीटा गामा बी डायरेक्शन एंगल्स ऑफ OP is equal to RR is equal to x y z. तो therefore डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे cos alpha will be x by r cos beta y by r cos gamma z by r. अब आप क्या करो,
Now, अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा निकालो। समझो O क्या है, ओरिजिन P, OP R R, mod of OP, so let alpha beta be the direction angles, be the direction angles, be the direction, wait, be the direction angles of this. Therefore, so cos alpha, cos beta, cos gamma. So therefore, okay. So cos alpha is equal to x by r, cos beta is equal to y by r, cos gamma is equal to z by r. Are the direction cosines? Are direction cosines of कौन सा वेक्टर OP is equal to r bar is equal to x y z. अब आपको पता है कि अगर वो डायरेक्शन cosines है तो here l square plus here cos square plus cos square beta plus cos square gamma क्या होगा, here cos square alpha. So therefore cos square alpha, ये आपको रिजल्ट याद रखना है, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is 1. अब आप मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर cos alpha, cos beta, cos gamma निकालो. Now magnitude of the vector cos alpha, cos beta, cos gamma निकालो. Magnitude of x1, x2, x3 क्या होता है, square root of x1 square plus square root of x1 square plus x2 square plus x3 square. So magnitude of, consider a vector, consider vector cos alpha, cos beta, cos gamma, उसका magnitude निकालो. Therefore, magnitude of cos alpha, cos beta, cos gamma will be equal to square root of पहला कंपोनेंट cos alpha का square is cos square alpha plus second component का square cos square beta plus cos square gamma. But cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma क्या है, 1. So square root of 1 वो आएगा 1. तो उसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1. Since इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आया, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर. Therefore, magnitude of cos alpha, cos beta, cos gamma is 1. Cos alpha क्या होता है, lmn. Cos alpha होता है l, cos beta होता है m और cos gamma होता है 1. That is, sorry, cos alpha l, left, cos beta n. Now, cos alpha l होता है, दूसरा रोटेशन m और cos gamma n होता है. Therefore, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर lmn अगर हम सोचे वो भी 1 होगा. तो ये जो वेक्टर है, वेक्टर कौन सा वेक्टर, द वेक्टर cos alpha, cos beta, cos gamma, जो हम सोचते हैं lmn या lm, उसको बोलते हैं इज डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर. डायरेक्शन कोसाइन यूनिट vector in direction of कौन सा वेक्टर, OP जो था R बार जो है x y z. और उसमें आपको पता है कि cos alpha का मीनिंग क्या है, cos beta का मीनिंग क्या है और cos gamma का मीनिंग क्या है. ठीक है, डेफिनेशन द थियरी ऑफ डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन नंबर्स. फिर एक छोटा सा लेट a बार इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप. तो आपको याद रखना है कि डायरेक्शन रेशियोज हम कर चुके हैं. Now let me solve one question जिसमें डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर भी आ जाए और डायरेक्शन कोसाइन भी आ जाए. Just 1 minute. Okay. और हाँ, आप लोग LR क्या था, x y z ही था. ओके, और आपको याद रखना है कि डायरेक्शन फॉर लेट a बार इज, दूसरा रिजल्ट ऑब्वियस है, a1i प्लस a2j प्लस a3k. तो डायरेक्शन रेशियो अगर ऐसा वेक्टर है therefore a बार क्या है, a1 a2 a3. तो इसके डायरेक्शन रेशियोज अगर लिखने हैं, अगर इसके डायरेक्शन रेशियो लिखने हैं
I finish the theory of direction cosines? Okay, just 1 minute. Just 1 minute. Sorry. What I will do is that ये जनरल theory of direction cosines. अब suppose कोई वेक्टर दिया है 3D में, x bar is x1 I cap plus x2 j cap plus, or I will write let vector in 3D is a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap. तो वो वेक्टर को हम लिख सकते हैं a1 a2 a3. बी वेरी सीरियस. a1 a2 a3. अगर पे हमेशा xyz नहीं होता है, हमेशा वेक्टर OP = r xyz नहीं होगा, तो वेक्टर in 3D a1i plus a2j plus a3k, a1i plus a2j plus a3k. तो a क्या होगा? a1 a2 a3. Suppose therefore magnitude of vector a वो क्या आएगा? square root of a1 square plus a2 square plus a3 square. इसके डायरेक्शन एंगल्स आप रखो. Let alpha beta gamma be direction angles of a bar respective meaning angle will be coordinate x axis normal stuff. तो direction cosine, therefore cos alpha will be a1 upon mod a cos beta will be a2 upon mod a cos gamma is equal to a3 upon mod a will be the direction cosine. This को connect with x y z के साथ कनेक्ट करो. इसलिए मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको थोड़ा और लगेगा ये पिक्चर, पर अच्छे तरीके से जाना पड़ेगा. Therefore cos alpha कैसे मिलेगा? डायरेक्शन कोसाइन cos alpha cos beta cos gamma. तो x y z था तो x upon mod a, तो cos alpha क्या आएगा? a1 upon mod a. फिर cos beta वो क्या आएगा? a2 upon mod a. और cos gamma will be a3 upon mod a. इनको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस of a bar. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ a bar. एलिमेंट क्या था? Here cos alpha क्या होता है? L. cos beta क्या होता है? M. cos gamma क्या होता है? M. So therefore L क्या मिलेगा? a1 upon mod a cos M क्या आएगा? a2 upon mod a और डायरेक्शन कोसाइन में n आएगा a3 upon mod a. Okay, I will not prefer to write element इसमें जब मैं वेक्टर a बार लिख रहा हूं. that is डायरेक्शन कोसाइन. And here आपको याद रखना है, मैं आपको बता चुका हूं cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma क्या आएगा? and sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma will be 1. Okay, now अब इधर अगर आप ध्यान से देखो तो डायरेक्शन रेशियोज ये बात क्या है? डायरेक्शन रेशियोज कैसे मिलेंगे? तो मैं सीधा लिखूंगा डायरेक्शन एंगल्स क्या है इस वेक्टर के ए बार के? अल्फा बीटा गामा. डायरेक्शन कोसाइंस सेपरेटेड बाय कॉमास ऐसे हमको मिलेंगे cos अल्फा cos बीटा cos गामा. और हाँ, अब आपको याद रखना है कि हियर जो अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू है वो क्लोज 0 to पाई में आएगी. अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्लोज ओपन 0 to पाई में आएगी. और फिर आपको याद रखना है कि हियर ए बार क्या था? खाली ए बार था a1 a2 a3 a1 a2 a1. ओके, सो right? तो आपको याद रखना है डायरेक्शन रेशियोज. अगर ए बार a1 a2 a3 है तो सीधा क्या कर सकते हो कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बार वो होंगे a1 a2 a3.
वो होंगे A1 A2 A3। ठीक है, ये एक पॉइंट डायरेक्टली आप लिख सकते हो बिकॉज A1 क्या आएगा L into mod A, so they will be proportional। you can write के A1 A2 A3 are proportional to direction cosines, तो डायरेक्टली डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे A बार के ऑब्वियस A1 A2 A3। डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे A1 A2 A3, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे A1 A2 A3। दैट पार्ट इज क्लियर। इतना आपको याद रखना है फॉर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। अब लेट मी सॉल्व अ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 9। राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर a bar is equal to ij minus 2k and hence calculate its direction cosines। एग्जांपल नंबर 9 कर रहा हूं, ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूं। राइट द डायरेक्शन कोसाइंस, पहले तो वेक्टर हियर a bar क्या है, a bar क्या है, a bar is i cap plus j cap minus 2k cap। a bar के साथ कनेक्ट करना, r bar के साथ कनेक्ट प्लीज मत करना। तो a bar क्या हो जाएगा, a bar हो जाएगा ये है 1 1 minus 2 1 1 minus 2। can you connect this with as a1 a2 a3? just one minute। अगर मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज कर रहा हूं तो मुझे ये आ जाना चाहिए बिकॉज अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस में डिटेल में करूंगा तो फिर वो लेंथी हो जाएगा। ओके ओके ओके, सो दिस इज a1 a2 a3, so therefore a bar will be equal side 1 1 minus 2, that you think as a1 a2 a3। so mod a आप निकालो, magnitude of a is square root of 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 minus 2 का स्क्वायर 4। ओके, मैं निकालूंगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस minus 2 का स्क्वायर। therefore mod a square root of 1 plus 1 plus 4 root 6 आएगा, root 6 आएगा। therefore this will be root 6, so therefore modulus of a will be root 6। modulus of a will be root 6। ये बात तो है हमारे पास। so let alpha beta gamma be direction angles of a bar, so therefore cos alpha तो क्या आएगा a1 upon mod a। अभी मैंने सिखाया आपको कैसे याद रखना है। cos theta will be a2 upon mod a और cos gamma will be a3 upon mod a। जब एक वेक्टर दिया होगा a bar दिया है 1 1 minus 2, so compare it with 1 1 minus 2, तो therefore mod a is root 6 और a bar क्या था 1 1 minus 2, so cos alpha कितना आया, therefore cos alpha कितना आया, okay 1 upon root 6, okay cos alpha आया 1 upon root 6, okay मैं इधर लिखता हूँ, therefore cos alpha 1 by root 6 cos beta 1 by root 6 cos gamma minus 2 upon root 6। अब आपको जो भी चीजें पूछी हैं वो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले वो पूछेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे लिखोगे, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, cos alpha cos beta cos gamma separated by cos। therefore डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस हम लिखेंगे 1 by root 6 comma 1 by root 6 comma minus 2 by root 6। क्या लोगे, ये आ गया हमारा डायरेक्शन कोसाइंस पहला आंसर। फिर नाउ हियर cos alpha क्या है 1 by root 6। ओके, डायरेक्शन रेशियोज क्या है a1 a2 a3, ये पहला टॉपिक। ओके, डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में मैंने बता दिया। अब डायरेक्शन एंगल्स, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज क्या थे a1 a2 a3 सेपरेटेड बाय कॉमा। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। हम कैसे लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे 1 1 minus
A1, A2, A3। अब cos अल्फा क्या है? Here cos अल्फा कितना है? Cos अल्फा is 1 by root 6, cos beta is 1 by root 6, cos gamma is minus 2 by root 6। अल्फा बीटा कहाँ पे है? क्लोज 0 to pi, तो उसमें इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना। अल्फा बीटा गामा बिलोंग टू क्लोज 0 to pi, तो therefore सीधा अल्फा क्या है? cos इनवर्स ऑफ 1 by root 6। बीटा क्या आएगा? cos इनवर्स ऑफ 1 by root 6। और गामा क्या आएगा? गामा will be cos inverse of minus 2 by root 6। Now what is cos inverse of minus 6? Cos inverse of minus 6 is pi minus cos inverse of x। So based on that logic, alpha cos inverse of 1 by root 6, beta cos inverse of 1 by root 6 and gamma क्या आएगा? गामा होगा pi minus cos inverse of 2 by root 6। तो डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं? अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, तो ये होंगे डायरेक्शन एंगल्स। cos इनवर्स ऑफ 1 by root 6 which is equal to that और वेरीफाई करो डायरेक्शन एंगल्स is equal to अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। अल्फा कितना है? cos इनवर्स ऑफ 1 by root 6, cos इनवर्स ऑफ 1 by root 6 और pi minus cos inverse of 2 by root 6। Just 1 minute, let me see if I can solve one more question of the exercise. Okay. Yes, what I will do? I will solve one more question of the exercise so that आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे तरीके से आ जाएगा। Yes or no? So find the direction cosines of the vector। Question number 12 मैं कर रहा हूँ of exercise 10.2। Please be serious. Try to get the answer before me। Let a bar is equal to I plus 2j plus 3k। 1 मार्क क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम 2 मार्क के लिए आ सकता है। I plus 2j plus 3k। डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो तीनों पूछे हैं। Therefore a बार क्या हो जाएगा? 1 2 3 which is equal to a1 a2 a3। therefore magnitude of a become square root of 1 square 1 2 square 4 plus 3 square 9। so therefore magnitude of a will be equal to square root of x root 14। okay, root 14। suppose डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गामा है तो आपको सीधा लिखने का लेट अल्फा बीटा गामा लेट and okay for a bar कितना है 1 2 3। okay let alpha beta gamma be direction angles of vector a bar। तो सीधा आपको याद रखना है कि cos alpha क्या आएगा? cos alpha a1 upon mod a। एग्जाम में आपके देखने को तो भी चलता है a1 upon mod a। so cos alpha will be a1 upon mod a, cos beta will be a2 upon mod a and cos gamma is a3 upon mod a। वो है डायरेक्शन कोसाइन से सीधा आपको यही पता है। तो cos alpha कितना होगा? cos alpha will be a1 मतलब 1 upon root of 14 1 by root 14। cos beta is also 1 by root 14 and cos gamma is also 1 by root 14। अब आपको पता है कि अल्फा बीटा गामा कहां पे है? दे लाई इन क्लोज 0 to pi। तो सीधा आप लिख सकते हो अल्फा इज cos इनवर्स 1 by root 14, beta is cos inverse 1 by root 14, gamma is cos inverse c। मैंने क्या बोला? थियरी लिखना थोड़ा अजीब है पर याद रखना पड़ेगा बिकॉज अल्फा बीटा गामा कहां पे होते हैं? एज अल्फा बीटा गामा बिलोंग टू क्लोज 0 to pi। अब तीन चीजों उन्होंने पूछी है। डायरेक्शन एंगल्स, तो डायरेक्शन एंगल्स इज इक्वल टू अल्फा
कॉमा बीटा कॉमा गामा लिख लो। डायरेक्शन कोसाइंस cos alpha cos beta cos gamma and direction ratios a1 a2 a3। सो देखो पहली चीज अगर वो पूछे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ a बार वो है a1, a2, a3 तो कितना आएगा 1, 2 क्या 1 2 3 का सॉरी यहाँ पे आएगा 2 यहाँ पे आएगा 3 दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग क्या मिस्टेक और यहाँ पे आएगा 2 by root 14 सॉरी 3 by root 14 सॉरी सो 1 2 डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन इज द बार इज इवन इट विल बी 1 2 3 डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ये बार अगर डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गामा है तो वो क्या होंगे वो होगा cos alpha cos beta cos gamma separated by commas तो वो कितना आएगा 1 by root 14 1 by root 14 sorry 2 by root 14 and the last one is comma 3 by root 14 direction angles is equal to alpha comma beta comma gamma लिख लो और लास्ट so direction ratios direction cosine direction ratio से लिखने का and the last one is direction angles of a bar direction angles of a bar वो क्या है separated by commas alpha comma beta comma gamma cos inverse 1 by root 14 cos inverse 2 by root 14 cos inverse 3 by root 14 and the last one जो पिछली बार मैं नहीं लिख सका था वो था डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर क्या होता है ये फर्स्ट वन डायरेक्शन रेशियोज जो मैंने फाइंड किया डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन एंगल्स और चौथा डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर will be very clear direction cosine unit vector in direction of a bar in direction of a bar वो क्या होता है the vector cos alpha cos beta cos gamma cos alpha cos beta cos gamma वेक्टर के अंदर वो आंसर आएगा 1 by root 14 1 by root 14 2 by root 1 2 yes that is the way question number 12 I have done I will solve the remaining questions of exercise 10.2 in the next video lecture तो आपको समझ में आ गया कि अगर कोई वेक्टर दिया है a bar is a1 a2 a3 तो डायरेक्शन रेशियोज कोसाइंस डायरेक्शन एंगल्स और डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है मैंने दोनों एग्जांपल किए और डिटेल में आपको समझा दिया कोई डाउट नहीं होना चाहिए दैट्स इट फॉर टुडे टेक केयर स्टडी वेल थैंक यू